तो अभी हम घर पे आए और ब्लड लेके गए वो दीदी। अब 2 घंटे बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ये मेरा तो इतना ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया है, इतना बर्बाद हो गया है कि कोई किसी लोकल इंसान को यूनिट में एंटर कैसे करने दे रहा है। क्योंकि नहीं आपको नहीं होती परमिशन बिना आईडी कार्ड के वहाँ पे जाने की। और ना ये इंसिडेंट मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं जो स्विंग था उसके बैक साइड में ना क्वार्टर्स थे और क्वार्टर्स के बीच में कुछ जगह थी, एक प्लॉट खाली पड़ा था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 जनवरी और आज का दिन पता नहीं यार क्यों मेरा मतलब ऐसा मूड ऑफ हो गया अभी मेरा पूरा। मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल क्योंकि कल मेरे को बैक पेन बहुत बढ़ गया था और मेरी जो पस फॉर्म हो रही थी नीचे की साइड टेल बोन पे, वो भी बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी। कल वापस पस फॉर्म हो गई थी उधर, तो हम लोग अर्जेंट आज आए बताने के लिए, तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। ये देखो हमारी गाड़ी भी बंद पड़ गई है, ठंडी में पड़ी थी, 1 महीने से चालू नहीं की थी, तो ये हो गई है बंद। और ये अंकल हेल्प कर रहे हैं हमें धक्का मारने में। मैं तो मार नहीं सकती पर ये हेल्प कर रहे हैं तो अच्छा है। और ये है हॉस्पिटल जहाँ पे मैं आई थी अभी, और बहुत मूड ख़राब हो गया यार। अरे यार क्या है ये, गाड़ी बंद पड़ी। નથી બીજું કોઈ નથી આમાં। क्या हुआ बच्चा? તે હવે લોકો વધારે મારે ને ભલા નતો માર્યો એવો હોય તો ચાલુ થઈ જાય. તું આમ સાઈડમાં વઈ જા તો ઈ હું આગળ કરું. એકલા કેમ કરશો? એના ભાઈ इसको भी अभी बंद पड़ना था। અરે હું થાકી ગયો એક એટલે તમને કહેતા ઉભા રહો, કોઈને બોલાવી લ્યું તો સાહેબ, મને તો ખબર જ હોય બધી વસ્તુમાં. એક છે ધક્કામાં કોઈ દી નિષ્ઠા નો ન થાય, એકથી તો નો જ થાય। નો બને ત્યાં સુધી સેલ થાય ન લાગે. હા સાચી વાત છે। દરવાજા બંધ કર દો. હાલો મારો સેલ હવે ચાલુ રાખો, બંધ નહીં. બંધ નહીં થાય ને હવે? લાઈટ ચાલુ રહી ગઈ ને એટલે ઉકળી. એવું છે? હમણાં કેટલા દિની પાસે હેકી નથી ને એટલે છે એ ભાઈને ખબર જ હતી એટલે કે લાઈટ ચાલુ હતી। રોજ રાતે થોડીક થોડીક વાર ચાલુ રાખતી હોય એવું હોય તો। એમ તો અઠવાડિયે એકવાર હોય તો બંધ ઠંડી પડે ને ઠંડી જેવી છે કા? બગડી જાય ને. ગાડી રોજ ચાલુ હોય તો સવારમાં ઉપર કેવું રહે તો રોજ આ બાઇકમાં એવું થાય? તો અરે હું ઉતરી જાઉં। ઉતરે. ये मेरा तो इतना ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया है, इतना बर्बाद हो गया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। यार दिमाग का दही हो गया आज तो मंडे या ट्यूसडे को ऑपरेशन होगा। अभी आ रहे ब्लड टेस्ट वाले, तो अभी पहले ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या कुछ है तो नहीं ना। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और सब करवाना है, तो फिर वो लोग आएंगे।
नहीं क्या है, ये सब ख़त्म ही नहीं हो रही है चीज़ें। एक ठीक होता तो मैं ना, पता है ये मेरा कैसा हो गया, क्योंकि मैं रीडिंग के लिए बैठी थी सुबह 5 बजे और मैं उठी रीडिंग करके 9 बजे। तो बैठने का इतना हो गया ना कि वो वापस बस फॉर्म हो गई और ये ऑपरेशन की बारी आ गई, वरना मेरे को दवाई से बिल्कुल ठीक हो गया था। કાલે તમે દહીં લઈ આવ્યા હતા? નહીં જો દહીં નો ખાતી હો. હા કા ખાટું નથી ખાવાનું. કોણ ક્યાંથી આવી ગયું આવું બધું? ત્યારે મને કંઈક અંતરનું કીધું હતું કે હા 10-12 હજાર હવે કઈ બીજું નથી ને આના સિવાય, એટલે આમાં એટલો ખર્ચો નહીં આવે. હાલો હાજી મેમ. હા ફોન આવી ગયો કલેક્શન માટે, આવે છે રસ્તામાં. શું કરશે? કોઈ નહીં, ખાલી બ્લડ લઈ જાય બીજું શું કરે. યુરિન લેશે? હા એમાં લખ્યા છે જો કયા કયા લખ્યું. આમાં યુરિન ન ખબર પડે. સીબીસી, આરબીસી, એચઆઈવી એ બ્લડમાંથી જ થઈ જાય. એ પડ્યો, બીટી ને સીટી. એમએસ સર્જન છે એટલે એમએસ આવી ગયું. ઓનલાઈન નાખી દે. કન્ફ્યુઝ થયા લાગે, ઉપર આવ્યા ને પાછું નીચે આવી ગયા. ઈ ફર્સ્ટ ફ્લોર બોલે ને આપણી ઓલી એટલે પણ એમાં બે દવા આવે તો બે છોકરીઓને એ પોતાની રીતે એને આમ બોલવું ન હોય, આમ તરફ ડિસિઝન ન જ લગે કે એ તો વાંધો હોય. બધી છોકરી હા तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं. તમારે મોવામાં છે ને ડાન્સ મોટા મોવા મોટા મોવા. હા પૂરું થઈ ગયું. લોહી ન આવતું. તમારો મોબાઈલ ના એ તો ડોક્ટર નો છે. જોતું જ તમારે ના એ છે? મોટો પાડી દીધો વાંધો નહીં. તમે ઓનલાઈન કરજો ને વાંચો ને. કેટલા દિવસ તમને કેટલા પીતે છે. હજી કરવાનું છે? નહીં એ તો ડેટ છે ને રીડિંગ ટાઈમ નોટ કરવાનું છે.
ઓટી કરવાનું તમારે એટલે ખાલી બેક બેકમાં એમને રેસી ભરાઈ છે એટલે એમાં ટાંકા કે એવું કંઈ નહીં આવે ખાલી નાનું એવું હા રસી ભરાય એટલા માટે. ઓકે તો એ તો કાંઈ ન હોય પણ આ તો શું પ્રી ઓપરેટિવમાં બધી પ્રોફાઇલ આવે એટલે કરાવે મીટિંગ ને આમાં કેટલા ટાઈમથી તમારા બ્લડ નીકળે છે એ ટાઈમ નોટ કરવાનો અને ત્યારે ચાલુ છે થઈ ગયું ને? સાંજ સુધીમાં ના ના 2 કલાક ઓકે यार मैं इतनी ना खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी जब वो दवाई से बिल्कुल ठीक हो गया था मेरे को। और ये अचानक से तो नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदर ऐसा डाउट था कि ये वापस ना हो जाए और ये हो गया वापस मेरे को। अब ये सिस्ट डॉक्टर ने बोला है, आज स्पेशलिस्ट को दिखाया ना, तो आज डॉक्टर ने बोला है कि दवाई से आपका जो ठीक होगा वो टेम्पररी ठीक होगा, तो ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करते हो अब, तो ये बड़ा फॉर्म होगा मतलब कि जो कट आएगा ऑपरेशन के टाइम पे वो भी बड़ा होगा और उसको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब उन्होंने बहुत सीरियस होके आज तो बोल दिया। मेरे को वहाँ पे रोना आ गया था लिटरली, क्योंकि आज मेरा भर गया पूरा अंदर से कि अब यार ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इतना मुझे एकदम से एंजाइटी होने लगी थी उधर, तो उधर तो मैं रो ही दी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाओ कि ये तो करवाना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, या तो मंडे या तो ट्यूसडे, फिर उससे ज़्यादा लेट मैं भी नहीं चाहती कि हो, जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कल रात को मैं पूरी रात सोई नहीं, क्योंकि वो सोने में भी इतना नीचे अगर प्रेस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है मैं, तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। अब ऑपरेशन के अलावा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, वरना मैत्री सर ने पहले ऐसे बोला था कि अब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो मुझे इतना बड़ा रिलीफ मिला था कि दवाई से अगर ठीक हो जा रहा है तो फिर ऑपरेशन के लिए क्यों जाना, क्यों इतना दर्द सहन करना। अब ये कल वापस हो गया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं रीडिंग करने बैठ गई। मैं 5 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यूसली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बीच में पानी पीने उठ जाती हूँ, कभी वॉशरूम जाना होता है तो उठ जाती हूँ, कभी ऐसे 2 मिनट वॉक कर ले, क्योंकि मुझे मेरी कंडीशन पता है। लेट्स सी। तो अभी हम घर पे आए और ब्लड लेके गए वो दीदी। अब 2 घंटे बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, फिर डॉक्टर को फ़ोन किशोर करेंगे और जो रिपोर्ट्स होंगी वो भेजेंगे, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हाँ, मेरा ना बहुत हो गया ज़िंदगी से। किशोर भी बेचारे अभी खाना खाए बिना चले गए, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे और अभी बज रहे हैं 12, और वो ऑफिस भी नहीं गए आज सुबह से, तो उनको भी वहाँ का भी देखना है। हालांकि वहाँ पे बता तो दिया था कि लेट आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का थोड़ा काम है। तो अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी, नाश्ता खाने की ऐसी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को बहुत, क्या बोलूँ यार मेरे को ना लिटरली ऐसा था कि मेरी एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, 6 या 7 महीने बाद। तो मैं 3-4 दिन से ही रीडिंग के लिए बैठ गई थी कि 6-7 महीने एग्ज़ाम है, तो 6-7 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और इस साल मुझे किसी भी हालत में क्लियर करनी है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्लियर करनी है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गया ना, तो अब ऑपरेशन होगा, उसके बाद डॉक्टर ने बोला है मैक्स आपको 20 से 25 दिन तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग भी आपको करवानी पड़ेगी बार। तो अब वो 20 और 25 दिन तो मुझे अपने वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में से हटाने पड़ेंगे, तो इतना शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मैं यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती हूँ जब मेरी हेल्थ पे बात आती है ना। तो मैंने इतने दिन से अपना इतना अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ था यार, मैं क्या बताऊँ। सुबह 5 बजे उठ रही थी मैं, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बजे तक मैं रीडिंग कर रही थी।
और 9:30 बजे किशोर को जाना होता है, तो वो 8 बजे उठते हैं। तो 9 बजे और 9:30 आधा घंटा मेरे पास होता है कि मैं उनको नाश्ता प्रिपेयर कर दूँ। फिर नाश्ता प्रिपेयर उनको कर देती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद वो जब चल जाते हैं, उसके बाद अपना फटाफट से, जब तक वो नहाने गए होते हैं ना, उतना देर बेसिक काम झाड़ू पोछा वो सब मैं कर लेती हूँ आधे घंटे में, ठीक है। और मतलब कि जब वो नहाने जाते हैं तब, और फिर आधे घंटे में नाश्ता चाय बना ली और बाकी सब, ठीक है। तो इतना काम कर लेती हूँ। उसके बाद किशोर जब जाते हैं ऑफिस पे, उसके बाद आते हैं वो कितने बजे, 2 बजे। तो उतना मेरे पास टाइम होता है, तो मैं उस टाइम पे थोड़ी और बात, फिर से ना 2 घंटे और रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। और फिर फटाफट उसी टाइम पे फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब का थोड़ा बहुत रहता है, तो मैं तब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, या कुछ एडिटिंग का है तो वो कर लेती हूँ, ठीक है। तो पूरे दिन का मैंने ना ऐसा शेड्यूल बना के रखा था, और वो 20 दिन का बिगड़ जाएगा मेरा। मैं इतनी इस साल मैं इतनी सीरियस हूँ ना इस चीज़ को लेकर कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है। मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें। आप एक रील देखते हो, 2 रील देखते हो, फिर कब 1-2 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चलता है। तो मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया। मैं सोशल मीडिया ज़्यादा खोलती नहीं। मेरा मोस्ट ऑफ होता है यूट्यूब पे, अगर मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ तो वो मैंने पेड क्लासेस ले रखी है, मैं वो अटेंड कर रही हूँ। अब क्या करूँ मैं 20 दिन का। वो टेंशन है। ऑपरेशन की इतनी टेंशन नहीं है जितना मेरे 20 दिन वो माइनस गया है ना उसमें से, उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो यार आप देख ही सकते हो, देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे रहता ही है ये। सुबह मैं उठी थी, मैंने आज रखा था क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था रात में, तो मुझे रात में नींद नहीं आई। तो मैंने आज ना 3 बजे का अलार्म रखा था कि 3 बजे उठ के पढ़ूंगी। उठी भी थी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं उठी थी। फिर बैठा ही नहीं गया मेरे से, बैठा ही नहीं गया। तो फिर मैं कैसे पढ़ूँ कैसे? तो फिर वो सिस्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि फिर मैंने तो मुझे कुछ भी दुख दर्द होता है तो मैं दौड़ के जाती हूँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है, मेरा दुख दर्द सुनो पहले तुम, ठीक है। तो फिर उसने बताया कि आपको अगर पेन हो रहा है तो ये कौन सी जेल है, डायसरा जेल। तो मैंने थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करके मैं सो गई थी, बट फिर भी मेरे से सीधा तो सोया ही नहीं गया। तो फिर 3 बजे उठी, पर ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई कि बैठूँ। फिर अलार्म बंद करके वापस सो गई। और फिर मैं उठी कितने, 8 बजे उठी। और मैं फिर फ़ोन किया जो इंटर्न थे उनको कि डॉक्टर आज अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि मोस्टली तो होते ही है, मतलब उनको भी ऐसे नहीं पता था। तो आज गए तो उनका ओपीडी था। तो फिर मैथी सर को वहाँ से फ़ोन किया, और फिर उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थे उनको बोला कि आप इनको देख दो। तो उनके पास जब चेकअप कराया तो फिर ये सब चीज़ें हो गई यार। तो अब किशोर भी बोल रहे कि अब वेट नहीं करना है, अब ज़्यादा बड़ा हो जाए उससे अच्छा इसको ख़त्म करो एक बार में, मतलब ऑपरेशन करवा देते, बाकी फिर आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर अब मैं नहीं देख सकता। कल मैं मैक्सिमम 8 घंटे में बैठी होंगी, और डॉक्टर ने बोला ही है मेरे को कि आप बैठते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बॉडी मूवमेंट आप रखो। तो वो तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ यार मैं, बट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना यार इन दोनों को, कि मैं अपने शेड्यूल को लेके इतनी सीरियस हो गई थी। सुबह 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, नाश्ता पानी सब हो जाता है, सिर्फ खाना बनाने का रहता है। तो इतना मेरे पास टाइम होता है कि मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, पढ़ने का, फिर यूट्यूब का एडिटिंग, स्क्रिप्ट बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर थंबनेल देखना कि आगे का कैसे बनाना है, क्या है, टाइटल सर्च करना, हैशटैग, ऐसी काफ़ी सारी 10 चीज़ें होती है यूट्यूब की। तो मैं इसको एडवांस में करके रखती हूँ। तो अभी भी कुछ रील्स आ रही होंगी तो वो मैंने पहले से 3 दिन पहले शेड्यूल करके रखी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा जा रहा था यार 2-3 दिन से तो, बट वो काम के चक्कर में हेल्थ का ना हमेशा ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो कल एक मुझे यूट्यूब पे मैंने ठान लिया था कि कल मैं एटलीस्ट अपना एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर डालूँ, पूरा एक टॉपिक। तो मुझे एक अच्छी खासी वीडियो भी मिल गई थी। पेड क्लासेस लिए मैंने, बट वो है सिर्फ मैथ्स के लिए, तो उसकी मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है इतनी। तो उसकी मैंने पेड क्लासेस ली हुई है, बट वो है रिकॉर्डेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, गगन सर की, ठीक है। तो और मैं कल हिस्ट्री पढ़ रही थी, ये सब हिस्ट्री वगैरह पढ़ रही थी, तो उसमें मेरा टाइम चला गया। उसमें ही बैठना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जीके में जीएस में। तो स्टैटिस्टिक्स ने वो सब कंप्लीट कर रही थी। तो इतना मज़ा आ रहा था यार, मैं सीरियसली बोलूँ बहुत मुझे मज़ा आ रहा है अभी ये पढ़ने में। और दिमाग में एक गोल बना लिया कि ठीक है इतना तो अचीव करना है अभी आने वाले 6-7 महीने में, ठीक है। तो और मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी 26 दिसंबर से, और तब से सिटिंग थोड़ी बढ़ गई थी मेरी, और मैंने अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया था। और पता है कैसा है कि मैं ना अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेकर सीरियस होती हूँ या कुछ अच्छा चालू करने जाती हूँ ना, तब कुछ ना कुछ ख़राब होता ही होता है। पता नहीं वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये
जेठालाल की जैसी किस्मत है ना, वैसी वाली किस्मत हो गई है कि कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा बुरा होता ही है। और ऐसा भी नहीं है कि अब नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव हो रहा है, नहीं, इतना पॉजिटिव सोचती हूँ, इतना पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर भी ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, होता ही रहता है। चलो यार, अब टेंशन लेके क्या ही फ़ायदा है ना, जो करवानी है चीज़, जो होना है वो तो होना ही है, होने को कौन टाल सकता है। पता है ये चीज़, मतलब कुछ बुरा होना तब ना ऐसे डाउट आने लगते हैं दिमाग में, किसी ने तो मेरी गुड़िया बनाई है, रोज़ छेद करता है और मेरे शरीर में छेद हो जाते हैं। और फिर ऐसे ख्याल आने लगते हैं आपको दिमाग में, जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, सॉर्ट आउट नहीं होती है ना, तब। मैं ना छोटी थी जब, आपको मैं ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं छोटी थी ना, कितने में, मैं कम से कम एट्थ नहीं, इतनी इतनी नहीं, फोर्थ या फिफ्थ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फोर्थ या फिफ्थ में, इतनी मैं छोटी थी। तो तब हम लोग रहते थे झांसी में, ठीक है, तो झांसी में रहते थे, वहाँ पे क्वार्टर्स होते ना। तो वहाँ पे एक दिन मैं, संडे था, और ये वाला इंसिडेंस ना मैंने किसी को नहीं बताया आज तक लाइफ में, अपने ना अपने पेरेंट्स को ना किसी को। तो संडे था, मैं नहा के निकली और मैंने हेयर वॉश किए हुए थे, और तब मेरे अभी जो बालों की लेंथ है ना, उतनी लेंथ मेरी तब बालों की थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे घर के ऐसे पूरे क्वार्टर्स ऐसे लाइन में थे, और हमारा सबसे लास्ट में था, लास्ट के बाद फिर एक और घर था, और फिर जंगल था। तो हमारे घर के आगे रास्ता और फिर पार्क था बच्चों के लिए, और उसके आगे फिर गुरुद्वारा था। तो संडे को मैं नहा के निकली और मैंने हेयर वॉश किए हुए थे, और फिर मैं जो अपना पार्क था ना, वहाँ पे मैं गई, और मैं तब अकेली थी, और दोपहर के कुछ 1 या 2 बज रहे होंगे। तो मैं पार्क में, वहाँ पे जो स्विंग होता है ना, वहाँ पे मैं बैठ के अपने बालों को सुखा रही थी। और एक छोटे बच्चे को कितना ही दिमाग होता है कि कुछ सोच समझ पाए, फिर भी उस टाइम पे मैं इतनी अलर्ट थी। तो मैं वहाँ पे अपने बाल सुखा रही थी, और मैं ऐसे आसमान में ऐसे ऐसे देख रही थी। तो तब ना पार्क के ऐसे साइड में भी एक रोड था, मेन रोड जिसको बोलते हैं, सबका आना जाना वहाँ से था। और हमारा जो पार्क था ना, उससे थोड़ी दूर पे हमारी फिर पापा, जहाँ पे आर्मी में थे ना पापा, तो नौकरी करते थे, तो वो वहाँ पे थे, और बहुत नज़दीक में ही था, उनकी जो यूनिट थी ना, बहुत नज़दीक में ही थी। तो इतना सुनसान था, तो वहाँ पे मम्मी कुछ कपड़े धो रहे होंगे, भाई और दीदी शायद, मुझे याद नहीं है थे कि नहीं, मतलब ट्यूशन गए हुए थे कि घर पे थे, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैं बैठी हुई थी, कुछ देर बैठी, उसके बाद ना साइड में से पार्क की जो फेंस लगी होती है, बाउंड्री, फेंस के साइड में से वो क्या बोलते हैं, फेंस का जो दरवाज़ा था मेन, 2 साइड से आने जाने के लिए था, पार्क के अंदर एंटर करने के लिए। तो एक आदमी आया, और बहुत ही ज़्यादा विचित्र जैसा था वो, कुछ उसके बाल ऐसे बिखरे हुए, और पुरानी सी मैली सी उसने शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, काली सी बहुत गंदी वाली, फिर फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, और उसके हाथ में ना कुछ फ़ोटो थी, उसकी एल्बम एल्बम में जो फ़ोटोज़ होती ना, उस साइज़ की उसके हाथ में कुछ फ़ोटो थी। मैंने एक झलक उसको देख भी लिया, और वो जो फेंस में जो एंट्रेंस था पार्क में अंदर आने का, वो वहाँ एंट्रेंस में आपने देखा होगा, आर्मी जो पार्क्स या कहीं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए जो बाउंड्री होती है, उसके बीच में ना गेट होता है, जैसे घूमता है पूरा, वैसी वाली एंट्री थी। तो वो ना वहाँ जाके खड़ा हो गया, और उसने मुझे देख लिया, और वो फ़ोटो उसने मेरे को 6 से 7 बार, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे करके दिखाई उसने मुझे। तो मुझे अंदर से ऐसा हो गया था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, मतलब छोटे बच्चों को इतना दिमाग नहीं होता, तो अंदर से ऐसे इंस्टिंक्ट तो आ गए थे कि कुछ तो यहाँ पे गलत है, कुछ तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैं ध्यान दे दूँगी तो। तो ना मैंने क्या किया, क्योंकि मैं 2-3 बार तो मेरी नज़र चली गई थी वहाँ पे, तो मैंने फटाफट हमारे पार्क के बैक साइड में जो स्विंग था, उसके बैक साइड में ना क्वार्टर्स थे, और क्वार्टर्स के बीच में कुछ जगह थी, एक प्लॉट खाली पड़ा था, और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए थे। तो मैं भाग के गई, मैंने उस आदमी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर मैं भाग के गई, और वो पत्थर जो रखे थे, उसके पीछे जाके छुप गई, और वो छुपी, उसको सिर्फ 2 या 3 सेकंड हुए होंगे, फिर मुझे लगा कि ये आदमी चला गया होगा। फिर मैंने ना थोड़ा छुप छुप के देखा, वो आदमी था ही नहीं वहाँ पे, और मैं फिर भाग के गई, और वो जो हम एंट्रेंस पे खड़ा था ना, वहाँ गई, और फिर मैंने पूरा रास्ता यहाँ लेफ़्ट टू राइट पूरा दूर दूर तक देख लिया, वो इंसान मुझे कहीं दिखा ही नहीं। और उसके 6-7 दिन बाद हम लोग ट्यूशन जाते थे, हमारे यूनिट में हमारा ट्यूशन लगा हुआ था,
तो आर्मी ऑफिसर्स है ना, वो पढ़ाते हैं। तो हम लोग वहाँ ट्यूशन जाते थे। तो ट्यूशन गई और वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए मैंने सर को बोला कि सर आई वांट टू गो टू वॉशरूम। तो उन्होंने बोला हाँ जाओ। तो मैं बाहर आई, तब वो बंदा वो यूनिट के अंदर भी, मैं कहा यहाँ पे लोकल्स को आने की परमिशन नहीं है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो तब भी मुझे नहीं पता उसका ध्यान मेरे पे था कि नहीं, पर मैंने उसको वहाँ पे देख लिया था और मेरे को बहुत ऐसा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पे कि, और किसी आर्मी ऑफिसर का, किसी भी सोल्जर का उस पर ध्यान ही नहीं था। मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई किसी लोकल इंसान को यूनिट में एंटर कैसे करने दे रहा है, क्योंकि नहीं आपको नहीं होती परमिशन बिना आईडी कार्ड के वहाँ पे जाने की। और ना ये इंसिडेंट मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन के बाद सब खराब ही हो रहा है मेरी लाइफ में। यार मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि आपकी लाइफ में इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही है, तो आपको फिर ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि ये रीज़न हो सकता है एक, मैं गलत हो सकती हूँ यार। लेकिन इतनी चीज़ें जब ख़राब हो ना, फिर आपको दिमाग में आपका दिमाग सिग्नल देने लगता है कि ये इंसिडेंट्स के बाद से, क्योंकि मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो गलत हो जाता है, मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चलो यार बहुत रो लिया धो लिया, ठीक है। अभी जो है उससे सॉर्ट करते हैं, पहले इसका क्या ही करूँ मैं। मेरे को ना सब टोकते रहते हैं कि तू तो रोती रहती है, तो मैं क्या करूँ यार, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन एक के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है ना, तो मुझे मैं फेडअप हो गई सारी चीज़ों से कि एकदम ठीक ही नहीं हो रहा है। बंदे के अंदर कितना ही अंदर होता है कि वो कितना ही और सहन कर सकता है। भगवान को भी दया नहीं आ रही मेरे पे। पता नहीं कितनी परीक्षा लेते रहते हैं। कल ही मैं सोची थी कि मैंने अभी स्टार्ट ही किया अपना प्रिपरेशन का, फिर एक प्रॉब्लम दे दी। कुछ अच्छा स्टार्ट करती हूँ तभी कुछ बुरा हो जाता है। देखो यार, मैं ना ब्लैक मैजिक और इस सब पे मैं बिलीव नहीं करती, बट आपका दिमाग आपको कहीं ना कहीं वो सोचने में मजबूर कर देता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हुआ है ऐसा जो नहीं जा रहा है। और इसके बाद, ये वीडियो के बाद, अगर कोई मेरा नज़दीक का कोई अगर इंसान ये देख रहा है तो प्लीज़ सिंपैथी देने मत आना, मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी किसी की। मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे अगर आगे से आप मुझे रोते हुए देखते हो ना, तो प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि तू तो रोती रहती है। मेरी ना हिम्मत वहीं टूट जाती है, मेरे को कोई बोलता है ना कि तू तो रोती रहती है। अब मुझे ये भी पता है कि मैं इससे निकल जाऊंगी, लेकिन बस प्रे फॉर मी कि इससे आगे, अब इससे बड़ा कुछ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। इससे तो मैं लड़ लूँगी। 6-7 महीने हो गए यार, चीज़ें ऐसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा भी, ऐसा बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है हमारी लाइफ में। किशोर को लेके उनका जॉब इतनी अच्छी उनको लग गई है, हम लोग खुश है। ऐसा भी नहीं है कि खुश नहीं है, कि ऐसी कोई घर गृहस्थी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी लाइफ में। फैमिली इतनी अच्छी मिली है, ऐसा लगता है कि खुद में ही ऐसा कुछ तो खटक रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। पता है, मेरे कोई पर्स ठीक हो गई थी, और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने मन्नत रखी थी। हमारे यहाँ पे पास में घोगा वदर है, वहाँ पे मंदिर में उन्होंने मन्नत रखी थी घी की, और मेरे को ये ठीक हो गया ना। उसके बाद वो वहाँ पे घी भी चढ़ा के आ गए थे। अब मैं उनको क्या बोलूँगी, मेरे को वापिस हो गया है, घी वेस्ट हो गया। ठीक है यार, चलता रहता है ऐसा सब कुछ, रोना थोड़ी ना होता है कोई। वो क्या बोल रही, रोना थोड़ी ना होता है। और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको बताने के लिए कि अगर ऐसा कोई फील कर रहा है तो वी आर इन वन टीम, लड़ते रहो बस। मेरे को ना बोलते, मेरे फैमिली वाले, किशोर भी मेरे को कितनी बार बोलते कि तेरी प्रॉब्लम तो अभी छोटी है ना,
देखा नहीं लोगों को हॉस्पिटल में जाके देख कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, फिर भी जी रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी प्रॉब्लम छोटी है, मुझे पता है, पर मेरा पेन है। मुझे पता चल रहा है मेरी नींद खराब हो रही है। मैं अपना नॉर्मल बेसिक काम मैं नॉर्मली नहीं कर पा रही हूँ। और कोई एक प्रॉब्लम हो तो बंदा लड़ ले, पर ये बार वो दिमाग खा जाता है अपना। तो इसलिए मेरे को ना एंजाइटी होने लगती है, फिर मेरे को रात में नींद नहीं आती। दवाइयाँ खा रही हूँ इतना टाइम से। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये ठीक भी हो जाएगा मेरे को, लेकिन मैं इसके बाद अब कुछ नहीं चाहती। मेरा ये है बोलने का। मेरा ये 20 दिन वेस्ट हो गया यार पढ़ाई के। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। A few moments later. दुख दर्द गए भाड़ में, पहले डांस कर लेते हैं, फिर अगले 20 दिन तक मुझे नहीं पता मैं कहाँ होंगी। दुख दर्द कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अभी, मतलब आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। या कोई भी ऐसा माइंड में आए, ऐसा बहुत ज़्यादा भार या ऐसे बहुत बड़ा ऐसे दुख दर्द आ गया हो ज़िंदगी में, तो एक काम करो, अपना ये ब्लैंकेट लो और सो जाओ चुपचाप से, बिना कुछ सोचे। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। सो जाने का इतना कौन टेंशन ले। देख रहे हो, रो लिया, पहले दुख दर्द सुना दिया, उसके बाद खुद ही मोटिवेट कर रही खुद को। सो जाओ, कौन ही टेंशन लेना। तो क्या बोली थी मैं? हाँ, भूख लगी है थोड़ी, वैसे मेरे को इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे अंदर से भूख लगी है बट इच्छा नहीं हो रही। बट देखते हैं थोड़ी देर बाद मैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी थोड़ी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं सोच रही हूँ मैगी मंगा लूँ, मैगी खा लूँ थोड़ी सी। तो बस अब वही करेंगे। चलो आप लोग को मिलते हैं अगले व्लॉग में। कैसा है ना यार, मैं दूसरों को कैसे मोटिवेट करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स में, जो मैं बनाती हूँ मोस्टली, और पीछे से मेरा ये हाल होता है। हालांकि मैं देखूँ तो 2025 भले कितना भी ख़राब गया हो, बट मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है खुद को लेके, बिहेवियर को लेके, हर चीज़ को लेके मुझे पता है। और जो लोग मुझे पहले जानते थे, अब वो अब मुझसे मिलेंगे तो दे विल बी प्राउड ऑफ मी कि मैं कितना अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो टेक केयर एवरीवन। हम सो जाते थोड़ी देर। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, बाय बाय।